Hello my dear students, how are you? I hope that all of you are very fine, very good, and good afternoon to everybody. Today we shall read about narration in your grammar portion. Narration. My dear students, narration means a statement, a speech, कथन, कथन वाक्य. Understand? This statement is given in two kinds, in two types. Number one, direct narration, indirect narration. In other words, direct speech, indirect speech. Direct statement, indirect statement. Understand? So, till now you have read about direct speech, and today I will tell you how to change the direct speeches into indirect speeches. Right? You can see narration means speech, statement, statement. So this speech or statement is given into two types: direct speech and indirect speech. Direct speech and indirect speech. Right? Direct speech means any statement, any speech which is given directly by the speaker. And indirect speech means a statement of a speaker which is given by any third person. That is indirect speech. तो आप लोग देखते होंगे सेंटेंस जब देखते हैं पढ़ते हैं तो उसमें कुछ सेंटेंसेस इन्वर्टेड कॉमा में लिखे रहते हैं. इसका मतलब वो किसी की कही गई बात बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही है जैसा उन्होंने कहा है ना. कभी कभी आप लोग उसको कोटेशन भी बोलते हो, और कोट मीन्स कहना ही होता है, QUOTE कोट. और इनडायरेक्ट स्पीच मीन्स किसी का कथन है लेकिन किसी थर्ड पर्सन के द्वारा व्यक्त किया जा रहा है, कहा जा रहा है. दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच. राइट? इनडायरेक्ट स्पीच मीन्स a statement which is given by a statement of a speaker which is given by a third person. Direct speech, a statement given by the speaker exactly as it is. Now we shall read how to change the direct speech into indirect speech. I am going to tell a graph of direct speech. See here. This is a graph. Inverted comma से पहले, before the inverted comma, this is one part, and into the inverted comma, this is other part. This part is called reported speech. This is called reported speech. And this one is called reporting verb.
portion is called reporting verb and this portion is called reported speech. मीन्स किसी के द्वारा रिपोर्ट की गई स्पीच, स्टेटमेंट. रिपोर्ट मतलब यहाँ कहना. और रिपोर्टिंग वर्ब, कौन सा वर्ब प्रयोग किया जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब के देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. नंबर 1 सब्जेक्ट, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब and this is object. Subject, verb and object. Then comma, then inverted comma. In this reported speech what do you find? आपको क्या क्या मिलता है यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में? 1, एक तो होता है सेंटेंस और दूसरा होता है पर्सन, है ना? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. और सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना? इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. रिपोर्टेड स्पीच में क्या मिलता है? व्हाट डू वी फाइंड इन रिपोर्टेड स्पीच? दैट इज पर्सन एंड सेंटेंस. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. और क्या मिलता है? सेंटेंस, है ना? सेंटेंसेस. सेंटेंसेस, विभिन्न प्रकार के सेंटेंस. पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, kinds of sentence. These two terms are different things. Understand? Parts of sentence means sentence का भाग, खंड. और kinds of sentence means sentence के प्रकार. तो इस प्रकार से इसमें हम kinds of sentence पढ़ते हैं. सेंटेंस के प्रकार. सेंटेंस के प्रकार कितने हैं? नंबर 1 simple sentence. Simple sentence has 2 variations, 2 kinds, positive and negative. Number 1 positive sentence. Positive sentence. Number 2 negative sentence. Number 3 Number 2 interrogative sentence. Interrogative, this is interrogative. And number 3 imperative, आज्ञा सूचक वाक्य. Imperative sentence. You will read about these 3 sentences. Simple sentence means positive, negative, interrogative sentence and imperative sentence. Interrogative means प्रश्नवाचक, simple means साधारण, positive means सकारात्मक, negative means नकारात्मक, imperative means आज्ञा सूचक. 2 सेंटेंस और होते हैं जो आपके 9th के कोर्स में नहीं है. एक होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसको कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य, और एक होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसको कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य. आश्चर्य, विस्मय आदि होता है उसमें. वो दोनों 10th में आप लोग पढ़ोगे. 9th में केवल यही 3 पढ़ना है. राइट?
in this way we have known there are three kinds of sentences: simple sentence, interrogative sentence, and imperative sentence. Some rules. How to change the simple sentences. How to change the simple sentence. तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट ले लेते हैं। ठीक, रिपोर्टिंग वर्ब में सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा वर्ब पर कि वर्ब किस टेंस का वर्ब है, क्योंकि जब रिपोर्टिंग वर्ब सेकंड फॉर्म में होगा तभी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। फिर से सी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट V2 सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब यहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगा तभी यहाँ का टेंस बदलेगा, नहीं तो यहाँ का टेंस नहीं बदलेगा। यानी अगर प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब होगा तो टेंस नहीं बदलेगा। अंडरस्टैंड? इफ योर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट बी चेंज्ड, एंड इफ your reporting verb is in future tense, then also the tense of the reported speech will not be changed, right? Then when we shall change the tense of the reported speech, when the reporting verb is in second form. कहने का मतलब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कब बदलेगा? जब वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ रहेगा। रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा, यानी वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा, तभी रिपोर्टेड स्पीच बदलेगा, है ना? तो तभी यू कैन चेंज द टेंस व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन सेकंड फॉर्म, देन यू कैन चेंज द टेंस। इसको मिटा then you can change the tense. The tense of reported speech. राइट? तो इतना समझ में आ गया आपके कि जब यहाँ पास्ट टेंस में वर्ब रहेगा तभी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। कैसे बदलेगा? आइए देखिए। तो प्रेजेंट चेंजेज इनटू पास्ट। प्रेजेंट चेंजेज इनटू पास्ट means present indefinite into past indefinite, present continuous into past continuous, present perfect into past perfect, present perfect continuous into past perfect continuous, right?
Past indefinite tense changes into past perfect tense. पास्ट इंडिफिनिट इनटू पास्ट परफेक्ट, ये सब यहाँ मिलेगी रिपोर्टेड स्पीच में, समझ गए ना। ये सब जो सेंटेंसेज हैं प्रेजेंट यहीं मिलेगा, पास्ट इंडिफिनिट यहीं मिलेगा, ठीक। यहाँ केवल वर्ब से मतलब है, पास्ट इंडिफिनिट इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट नो चेंजेस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंजेस। तो पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दे नो चेंज, ये नहीं बदलते हैं। अब बचा फ्यूचर, फ्यूचर इज रिमेनिंग। फ्यूचर में विल शायद, विल एंड शायद, विल इंटू वुड, शायद इंटू शुड। एक तरह से प्रेजेंट इंटू पास्ट ही हुआ ये भी, क्योंकि विल का पास्ट वुड, शायद का पास्ट शुड, तो प्रेजेंट इंटू पास्ट हुआ। लेकिन चूंकि फ्यूचर टेंस में है इसलिए विल इंटू वुड, शायद इंटू शुड। लेकिन मेरा मानना है कि विल शायद का वुड ही बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। एक बुक है JPH रिटन बाय UR मेदिरत्ता, द राइटर ऑफ सदर्न इंडिया, साउथ इंडिया के राइटर हैं। वो कहते हैं कि विल और शैल दोनों का वुड लिखना ज़्यादा ठीक होता है, राइट। तो ये टेंस बदलने का नियम मैंने बताया, रूल फॉर चेंजिंग द टेंस। नाउ आई विल टेल यू रूल फॉर चेंजिंग द पर्सन, राइट। Rule for changing the person. So already I told you first person I, me, my, and we, our, us, I, we, first person. Second person you, third person he, she, it, they, right? First person I, we, second person you,
थर्ड पर्सन, he, she, it, they। he, she, it तीनों का प्लूरल दे। तो इसमें आई, मी, माई, माइन, वी, अस, अवर, अवर्स, यू, योर, योर्स, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स, इट्स, एंड दे, देम, देयर, देयर्स। ये है तो थर्ड पर्सन नो चेंजेस। ये जो ही, सी, इट है ये नो चेंजेस। नो चेंजेस। आई में ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ये यू है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ठीक। एस ओ एन देखो, एस फॉर सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट एंड एन फॉर नो चेंज। तो क्या हो गया? सन, एस ओ एन हो गया, एस ओ एन, सन। आइए सन से परिचय कराते हैं। सन by 1 2 3 means 123 सन, 123 ना। तो दिस एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज। एन फॉर नो चेंज। ये फर्स्ट, वन फॉर फर्स्ट पर्सन, टू फॉर सेकेंड पर्सन, थ्री फॉर थर्ड पर्सन, राइट। वन इज फर्स्ट पर्सन, टू इज सेकेंड पर्सन, थ्री इज थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन नो चेंजेस, यानी ही, सी, इट, दे, नो चेंजेस, वे वैसे ही लिख दिए जाते हैं। सेकेंड पर्सन चेंजेज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन चेंजेज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज होता है? सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये आज मैंने आप लोगों को नियम पढ़ा दिया बच्चों, रूल्स पढ़ा दिया। इस रूल्स को आज आप लोग रिवाइज करना अपनी ग्रामर बुक से। दिस इज योर होमवर्क। व्हाट इज योर होमवर्क? रिवाइज द रूल्स ऑफ द नरेशन फ्रॉम योर ग्रामर बुक, राइट। आज इतना ही, कल से एग्जाम पर।